Good morning, students. So in today's class, we will be starting a new chapter. That is the chapter number 4, motion in a plane. So what is meant by motion in a plane? So motion in a plane is nothing but motion of the object in two dimensions. So we have to discuss the motion of an object in two dimensions. Already we discussed motion in a straight line. Motion of the object in a single direction. So what will happen in that case? So either the object is moving in positive direction or the object is moving in negative direction. अगर suppose motion in a straight line में देखें हम x axis पे एक object है, so इसका direction का possibility क्या है? इसके direction का possibility सिर्फ दो है, positive और negative. एक्स एक्सिस पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन केस ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम सिंगल डायरेक्शन स्टडी कर रहे हैं. अगर हम y एक्सिस के लिए y एक्सिस और यहाँ पे भी सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव. बट इन केस ऑफ मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन, two-dimensional motion. So two-dimensional motion is nothing but if three of the two of coordinate specify the position of an object, then that type of motion is known as motion in two dimension or motion in a plane. So यहाँ पे दो प्लेन में स्टडी करना है, यानी ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस. तो ये ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज वेक्टर्स. यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर्स यूज करते हैं. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट था, या तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मूव कर रहा था या तो नेगेटिव मूव कर रहा था, या तो एक्स एक्सिस पे था या तो वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस. तो वहां पे इजी था अंडरस्टैंड करने के लिए. बट मोशन इन ए प्लेन में क्या है, टू डायमेंशन से स्टडी करना है, तो एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स. दो प्लेन लेना है, दो डायमेंशन लेना है, दो डायमेंशन में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव से नेगेटिव पे कितने रेस्पेक्ट में वो फाइंड आउट करना है. सो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली रूल नहीं है. So we have to understand the language of a vectors. Vectors की language understand करना पड़ता है to understand the motion in a plane or motion in a space. Motion in two dimension और motion in three dimension study करने के लिए हम vectors को understand करना जरूरी है. Vectors को understand करना जरूरी है. Motion in two dimension और motion in three dimension को understand करने के लिए. So before going to find out vectors, first scalars and vectors. Scalars and vectors. So what is mean by scalar and what is mean by vector? What is mean by scalar? Scalar is a physical quantity which are having only magnitude. The quantity which are having only magnitude is known as scalar quantity. Scalar quantity having only magnitude. For example, length, mass, temperature, etc. So there are several scalar quantities. The quantity which are having only magnitude is known as scalar quantity. So next one is vectors. What is mean by vector quantity? The quantity which are having both magnitude as well as direction is known as vector quantity. So ये motion in a straight line में तो ज़्यादा इसका जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव में मूव करता था या तो नेगेटिव में मूव करता था, हम आपको इजीली उसका डायरेक्शन मालूम है.
बट यहाँ प्लेन में 2 डायमेंशन से उसको स्टडी करना है, इसलिए हम वेक्टर डिस्कवर करते हैं। तो वेक्टर मीन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्वांटिटी which are having both magnitude and direction is known as vector quantity. Example force, displacement, velocity, acceleration, etc. So these are the quantity which are having both magnitude and direction is known as vector quantity. Now what are the difference between scalar and vector? Difference between scalar and vector. What are the difference between scalar and vector quantity? So scalar, vector. So first difference is scalar quantity having only magnitude. The quantity which are having only magnitude is known as scalar quantity. The quantity which are having only magnitude is known as scalar. Vector means both magnitude and direction. The quantity which are having both magnitude and direction is known as vector quantity. So second difference is they change with change in magnitude. They change with change in magnitude. They change with change in magnitude. They change with change in magnitude only, but vector quantity change with change in magnitude as well as direction. Change in magnitude as well as direction. So scalar quantity is represented by ordinary letters. Scalar quantity is represented by ordinary letters. For example, x, y, a, b, etc. So they are represented by ordinary letters, but vector quantity are represented by special letters. Special letters having arrow over it. For example, so vector quantity है a vector, a के ऊपर arrow, next b के ऊपर arrow, next अगर x vector तो x के ऊपर arrow, etc. So these are the difference between scalar and vector quantity. इसमें सिर्फ magnitude है, इसमें magnitude भी और direction भी है. So this quantity is known as scalar and vector quantities. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो अब तक तो हमारे को मालूम हो गया स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और सिर्फ हम वन डायमेंशन में उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन आ गया हमारे को वेक्टर की स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वेक्टर्स यूज होते हैं, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर्स यूज होते हैं। तो वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
So graphically vectors are represented by a line segment as shown in figure. तो वेक्टर को हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, ग्राफिकली। ग्राफ में अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है लाइन सेगमेंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, पी पॉइंट इज ओरिजिन और टेल। पी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन और टेल। वेक्टर में अगर हम वेक्टर लाइन ड्रॉ करें ग्राफ में, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वन डायमेंशन में उसको स्केलर में लेते हैं, वेक्टर पे लेते हैं। क्यों, क्योंकि वन डायरेक्शन में सिर्फ दो डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में आ तो डायरेक्टली नेगेटिव लगा दे सकते हैं, बट टू डायमेंशन में ऐसा नहीं है, एक्स और वाई के रेस्पेक्टिव में इसको स्टडी करना। तो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये ऑब्जेक्ट है, हां ऑब्जेक्ट क्या मूविंग है। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या होता है इसका, जहाँ पे हेड नहीं है इसको हेड बोलते हैं, ये एरो को क्या बोलते हैं ग्राफ में, हेड बोलते हैं, और टर्मिनल बोलते हैं। ग्राफ में जहाँ पे हेड नहीं है उसका अपोजिट साइड क्या है, टेल। और फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। p इज ओरिजिन और टेल। नेक्स्ट Q is head और टर्मिनल, हेड और टर्मिनल। तो ये हो गया वेक्टर। तो वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी हम डिफरेंस में देखे, वेक्टर को हम ऑर्डिनरी लेटर से डिनोट नहीं करते हैं, उसके ऊपर एक एरो। फॉर एग्जांपल अगर ये PQ लाइन A है, ये वेक्टर A है, तो PQ इज इक्वल टू, PQ तो ऑर्डिनरी लेटर्स है, क्योंकि हम लाइन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डिनरी लेटर से। तो ये भी ऑर्डिनरी है, ये भी ऑर्डिनरी है, बट PQ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वेक्टर A। सो A क्या है, वेक्टर है, तो हम इसके ऊपर एरो। Vector are represented by special letter, or we can say that vector are represented by letter having arrow over it. तो इसके ऊपर arrow आना कंपल्सरी। तो ये हो गया वेक्टर। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो ये वेक्टर है आ गया, सो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना तो या तो मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखना और सिंपली लेटर है, सिंपली लेटर है और मॉड ऑफ वेक्टर है। तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। हमारे को अगर ये लाइन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूलास। बट मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना, directly proportional to length. If the vector is represented by length means length is directly proportional to magnitude. If the vector is represented by velocity means velocity is directly proportional to magnitude. If the force is represented by magnitude means force is directly proportional to magnitude. So वहाँ से directly proportional. तो यहाँ पे length is directly proportional to magnitude. इसकी मीनिंग क्या है, अगर एक वेक्टर है, तो इसकी लेंथ है सपोज 10 मीटर, 10 मीटर अगर ये लाइन की लेंथ है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है 10 मीटर, क्योंकि हम मॉड ऑफ वेक्टर ए से उसको रिप्रेजेंट। अगर इसकी लेंथ 10 मीटर है तो मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर होता, क्यों, क्योंकि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर को। तो इस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली और न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट